Yes, hello Amit, welcome on your Priya platform and let's start your heat transfer snap for your Bihar Public Service Commission interview, BPSC interview for the post of lecturer in various Yes, polytechnic colleges of Bihar. yes, sir. So Amit, Thank you. what do you know about heat transfer? What is heat transfer? Sir, generally in heat transfer, the transfer takes place in the form of the rate, and the heat transfer takes place in case of in three modes of heat transfer takes place in the generally in heat transfer, like the conduction, convection, and radiation. And the heat transfer takes place in the form of rate. What is the difference between heat, work, and energy? Sir, first of all, energy is the capacity of to do work, and energy is divided into two parts. One is transit form of energy, and another one is stored form of energy. And heat and work are the form of transit form of energy. And the work is due to the different potential gradient, like the pressure potential, electrostatic potential, etc. But the heat transfer takes place only due to the temperature difference. अच्छा, आई डोंट नो यू ऑब्जर्व और नोट, हमें जो जो स्वेटनिंग है, पसीना है, वो गर्मियों में ज्यादा आता है एज Yes, कम्पेयर टू sir. समर और विंटर. व्हाट यू फील, व्हाट इज Sure, द sir. रीजन बिहाइंड दैट? Sir, I think relative humidity का यहाँ पे हो सकता है, sir. रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या कंसेप्ट है? मतलब कि वो बताता है सर एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर हमारा कितना है, हमारा प्रेजेंट ईयर में एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है. अच्छा, आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, यूरिनेशन के लिए हमें विंटर्स में जाना पड़ता है या समर्स में ज्यादा जाना पड़ता है? किसमें सर? यूरिनेशन के लिए वॉशरूम में हमें समर में ज्यादा जाना पड़ता है, विंटर में ज्यादा जाना पड़ता है? सर अफकोर्स मेरे हिसाब से विंटर में सर. विंटर में ज्यादा जाना पड़ता है. क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि सर क्योंकि जो वहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमारा वाटर मतलब कि एब्सॉर्ब ज्यादा वाटर वेपर आई थिंक समर में करता है, विंटर में करता है सर. दैट्स व्हाई. अच्छा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर? Sir, as we know that convection is also the mode of heat transfer which occurs between the surrounding fluid and the solid due due to the temperature difference by the macroscopic bulk motion of the fluid. प्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है? Sir, main difference that in free convection, heat transfer takes place due to the bicycle or due to the temperature difference. But in case of the post convection, the heat transfer takes place by using the external agencies like the fan, blower, etc. अच्छा, आप ये बताओ, बॉइलिंग और कंडेंसेशन दे आर आल्सो काइंड ऑफ कन्वेक्शन फिनोमेना और दे आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? Sir, falling. Boiling or condensation, they are like, in which mode you can consider boiling and condensation? Okay, okay. Falling and condensation. पढ़ा है आपने, बॉइलिंग कंडेंसेशन से भी हीट ट्रांसफर Yes, होता है ना? yes, sir, yes, sir. तो बॉइलिंग कंडेंसेशन क्या है? दे आर काइंड ऑफ कन्वेक्शन फिनोमेना, कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन? ये कोई अलग ही मोड है? नहीं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम अगर ऐसे सोच सकते हैं सर कि जैसे कि पानी को हम गर्म कर रहे हैं किसी भी चीजों में, तो हम जानते हैं कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के वो बॉयल होना शुरू होगा. तो ये है कि जैसे वहाँ पे हमारा फ्लूइड है जो बॉयल हो रहा है, उससे जो वाटर वेपराइज हो रहे हैं, तो वहाँ हमारा कन्वेक्शन होगा. पूल बॉइलिंग से क्या समझते हो आप? व्हाट इज पूल बॉइलिंग? सॉरी सर, मैं ये मास ट्रांसफर नहीं बोला. ओके. अच्छा, व्हाट इज प्रांटल नंबर? Sir, Prandtl number is simple. The ratio, it is the property of the fluid, and it's the ratio of the kinematic viscosity to the thermal diffusibility. तो सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रांटल नंबर इन हीट Sir, ट्रांसफर? yeah, sir. Main significance is to significance.
एक सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं सर, ये मतलब कि थर्मल बॉन्डिंग लेयर और जो हमारा हाइड्रोडायनामिक बॉन्डिंग लेयर, इसके बीच में एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप। और हम कह सकते हैं सर, it signifies the relative magnitude between the momentum diffusion rate and the heat energy diffusion rate, which are occurring simultaneously in their bond layer. That is momentum diffusion rate in case of hydrodynamic bond layer, and the heat energy diffusion rate in case of thermal bond layer. Good. What is the difference between that hydrodynamic boundary layer and thermal boundary layer? Sir, main difference I think so that in case of the hydrodynamic bond element, there will be the velocity gradient, which is normal to the plate, and it is due to the momentum diffusion rate. Whereas in case of the thermal boundary, it is also a thin region inside which there will be a temperature gradient, which is also to the normal to the plate, and this temperature gradient is generally due to the heat diffusion rate, or rather the heat transfer between the solid body or the surrounding fluid. ओके, तो आपने थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर में, सो कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी? Sir, simply it is the ratio of the thermal conductivity to the heat capacity. Yes, sir, ratio. क्या बताता है अपने को? अल्फा से क्या पता चलता है? सर ये बताता है कि how fast the heat will be diffused from a material or a medium, or we can say that it tells about the ability of the material to allow the heat energy to get diffused from it. तो किसके लिए ज्यादा होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी? इट इज मोर फॉर लिक्विड और गैसेस? ओके सर, सर ये गैसेस के लिए ज्यादा होगा सर। व्हाई? बिकॉज सर यहाँ से क्योंकि रेशियो है थर्मल कंडक्टिविटी टू द हीट कैपेसिटी रो सीपी, तो हम एक जान रहे हैं कि हाँ गैसेस का थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड, बट जो डेंसिटी है सर, वो डेंसिटी जो लिक्विड का है बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द गैसेस, तो यहाँ से हम कंपेयर करके बता सकते हैं सर। व्हाट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? Wind displacement law states that the absolute temperature of the black body is increases or with decrease in the wavelength, or we can say it can absolute temperature of the black body is going to be decreased with increase the wavelength of the body. That is lambda t equal to constant. अच्छा, सपोज आपके पास एक यू आर हैविंग ए हॉट मेटालिक स्फीयर, आपने उसको एक रूम में रखा है। सपोज इनिशियली इट इज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, you kept it in a room which is at 27 degree Celsius. Okay, और वो 400 से 27 डिग्री सेल्सियस है, मेटालिक स्फीयर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, उसको आपने फर्नेस से उठाया, जो फर्नेस मेंटेन्ड एट 400 डिग्री सेल्सियस, एंड यू केप्ट इट इन ए रूम व्हिच इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। यस सर। अच्छा, जो इनिशियल उसका 50 डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर है, सपोज दैट इज सपोज टेकिंग प्लेस इन 30 सेकेंड्स। यस सर। 400 से 350 टेम्परेचर आने में कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड्स। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट जो 50 डिग्री का ड्रॉप होगा, दैट विल बी इन हाउ मच टाइम? कितने टाइम में होने वाला है? अच्छा, वो मुझे लगता है 30 सेकंड में होगा, सेम 30 सेकंड्स में होगा? नहीं, उससे ज्यादा में होगा, उससे कम में होगा? कम में होगा सर। उससे कम में हो जाएगा? हाँ सर। सर एक मतलब मिनट, वो कुछ इट विल बी समथिंग लाइक 25 सेकंड, 28 सेकंड। यस सर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर अगर हम ये जो हमारा है जो स्फीयर बॉडी है, उसका जो टाइम के साथ उसका सर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। जब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे सर, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो एक्सपोनेंशियली हमारा मतलब कि वेरी करेगा सर। वहां से हम ग्राफ बता के देख सकते हैं कि सर जैसे कि टाइम जैसे ही घटते जाएगा, टाइम के साथ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज करेगा या बढ़ेगा? हाँ, तो टाइम आई थिंक सर जैसे कि मान लिया जाए कि पहले 30 डिग्री सेल्सियस है, एक कोई मेटल बार है,
एक है 20 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा वो ज्यादा तेजी से रेट ऑफ कूलिंग जो होगा उसका ज्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू द 20 डिग्री हाँ सेल्सियस। तो वहाँ जब 400 पे था तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा था, रेट वो ऑफ 30 या सेकंड में या हुआ, 30 सेकंड में यस वो ड्रॉप हो गया। यस अभी सर, रेट यस ऑफ सर, कूलिंग कम होगा यस सर। तो फिर टाइम तो बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब उतना सेम टाइम में मैं आप कह रहे श्योर हो कि नहीं हूँ। अभी 30 सेकंड से कम लगेगा, बट टाइम तो बढ़ना चाहिए फिर, अगर मैं आपके लॉजिक के हिसाब से जाऊं तो। दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हमें। एक तो आप बोल रहे या हो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटेगा तो टाइम तो बढ़ना चाहिए। बिकॉज व्हाट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम। सर इंटरनल एनर्जी जो हमारा बॉडी होगा वो टाइम के साथ वो उसका घटेगा सर, इंटरनल वो एनर्जी क्यों एंड घट दिस रहा है, वो विल। हीट ट्रांसफर की वजह से तो घट रहा है। तो ये वो यस सर, फास्टली हाँ। घटेगा या स्लो घटेगा। चलो ये बताओ। सर दो दो इनिशियली में पीरियड कंसीडर कर लेते हैं। पहला पीरियड जब 450 से 400 से 350 पे आया, दूसरा पीरियड जब 350 से 300 पे आएगा। तो हम्म। इंटरनल एनर्जी चेंज, रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फास्टर किस में होगा। सर 400 से 350 के बीच में होगा हाँ, आई थिंक। उसमें रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फास्टर होगा, मतलब हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब टाइम जो ज्यादा उसमें जल्द। लगा है वो कुछ कम लगेगा। या सर। तो दूसरे हाफ में तो टाइम फिर ज्यादा लगना चाहिए ना 30 से, नहीं। हाँ टाइम ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ, हाँ रेट, हाँ हाँ हाँ। या सर, हम्म, या रेट ऑफ कूलिंग हमारा स्लो होगा, मतलब कि लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा, श्योर। डीटी क्योंकि सर रेट ऑफ कूलिंग जो होगा डीटी बाय डीटा होगा। तो हम्म, फिर हमारा मतलब कि टेम्परेचर ड्रॉप अगर कम कब होगा, जब आई थिंक टाइम ज्यादा होगा, आई थिंक सो। हाँ सर, मुझे लग रहा है सर यही होना चाहिए। अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग क्या करेगा, रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा। सर रेट ऑफ कूलिंग तो डीटी बाय डीटा, सर स्लो तीन होगा चीजें रेट हैं, ऑफ अच्छा कूलिंग। तीन तीन चीजें सर हैं। हीट सर ट्रांसफर, रेट ऑफ हाँ कूलिंग और टाइम। सर, हीट ट्रांसफर स्लो होगा सर, उसके बाद रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो भी स्लो होगा, लेकिन मुझे लगता है टाइम ज्यादा लगेगा। अभी ठीक है, बट पहले आपने गड़बड़ किया था इसमें ना। यस सर, यस सर। चलो, तो आप, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे अमित, आप बताओ एनटीयू क्या होता है, व्हाट इज एनटीयू ऑफ हीट एक्सचेंजर। Sir, NTU can be defined as it is the ratio of two things. In denominator, it is the product of the overall heat transfer coefficient and the heat transfer area. And in numerator, there is a product of overall heat transfer coefficient into heat transfer area. And in denominator, this is the minimum heat capacity. It means अच्छा, UA by C इस minimum. क्वांटिटी को ना, इस पैरामीटर को वी आल्सो नेम एज डायमेंशनलेस एरिया। एनटीयू को डायमेंशनलेस एरिया भी बोलते हैं, ऐसा क्यों। सर क्योंकि सर एनटीयू जनरली हमारा इंडिकेट्स करता है साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। हम्म, सर यहीं से मैं सोच पा रहा हूँ अभी। चलो ठीक है, ठीक है अमित, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ अभी। हम्म, देखो ठीक है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो ठीक लग रहा है, आप आंसर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप बीच में घबरा जाते हो, है ना। यस सर। क्वेश्चंस को देखो, आपको जो पता है ना, जितना भी पता है आपको अमित, उस पे हम्म, कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। जितना भी आपको पता है उसको, उस नॉलेज को यूटिलाइज करके बेस्ट पॉसिबल वे में यू नीड टू ट्राई टू कन्विंस द इंटरव्यूअर। ओके सर। अब वो सबका अलग अलग नॉलेज है, किसी का, जैसे हम कहीं कहीं कभी किसी से डिस्कशन करते हैं, मान लीजिए आप अपनी फैमिली में बैठे हो डिस्कशन कर रहे हो, तो ऐसा होता है ना कि किसी का नॉलेज बहुत अच्छा है, किसी का कम है। बट यस क्या सर। किसी का कॉन्फिडेंस कम ज्यादा होता है क्या, नहीं। तो इंटरव्यू भी ऐसा ही है, जो आपने पढ़ लिया, जितना आपने नॉलेज गेन कर लिया, दैट सफिशिएंट नाउ। अभी क्या यस सर। करना है, उसको आपको बेस्ट पॉसिबल वे में उसको कन्विंस करना है, उसको पहुंचाना है इंटरव्यूअर तक। यस सर। यस सर। तो उस पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, बाकी ठीक है। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड बॉडी टू गेन द हॉट सरफेस टेम्परेचर क्विकली।
So how faster heat is diffusing in a particular material, that is represented by thermal diffusivity. yes, गैसेस yes, जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. If you are yes, passing air over any hot plate, hot surface, so very mm-hmm. quickly it will take the surface of hot plate as Yes, compared sir, to yes, water. हीट ट्रांसफर तो वाटर में ज्यादा होगा बिकॉज वाटर का एच वैल्यू ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, हीट कैपेसिटी ज्यादा है. हीट ट्रांसफर विल बी मोर विद वाटर, बट जो टेम्परेचर गेन है, हीट का पेनिट्रेशन है, दैट विल बी क्विकर इन एयर. yes, sir. पैरेंटल नंबर चलो आप ठीक बता रहे थे. पूल बॉइलिंग तो आपने पढ़ा नहीं है वो चीजें. बॉइलिंग कंडेंसेशन, दीज आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कन्वेक्शन ओनली. कन्वेक्शन दो तरह का होता है, कन्वेक्शन विदाउट फेज चेंज, एक होता है कन्वेक्शन विद फेज चेंज. Yes, sir. जब कन्वेक्शन में फेज चेंज हो जाता है ना, वन ऑफ द फ्लूइड इफ इट इज चेंजिंग इट्स फेज, दैट इज नोन एज व्हाट, बॉइलिंग और कंडेंसेशन. Boiling, yeah, बॉइलिंग में क्या हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में. कंडेंसेशन में vapor, वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. liquid. एग्जांपल दे सकते हैं आप कुछ ना कुछ. Yes, sir. बॉइलिंग का एग्जांपल सर, जैसे सर हम चाय बना रहे हैं. इवोपरेटर में जो हाँ, होता है, हाँ, yes, yes. ठीक है. इवोपरेटर में आपका बॉइलिंग होता है. बॉयलर में आप बॉइलिंग करते हो, लिक्विड को कन्वर्ट करते हो, Mm-hmm. तो वो कन्वेक्शन ही है, स्पेशल फॉर्म ऑफ कन्वेक्शंस. कंडेंसेशन में सर कंडेंसर का एग्जांपल बोल सकते हैं क्या? कंडेंसर में कंडेंसेशन हो रहा है, बिल्कुल बोल सकते हो. ठीक. थोड़ा पूल बॉइलिंग के बारे में पढ़ना, पूल बॉइलिंग कर्व होता है उसके बारे में पढ़ना, पूल बॉइलिंग कर्व. ओके सर. ये मास ट्रांसफर का पार्ट नहीं है, तब चलो यहाँ से शुरू हो जाता है, बट दीज आर देयर बेसिक ओके थिंग्स सर. यू कैन कवर. ओके. अच्छा, मैंने फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था ये एक कूलिंग वाला, वो शायद मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ. रिपोर्ट द आंसर ना. तो यस टाइम यस. के साथ साथ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीटिंग भी डिक्रीज करेगा. अगर कूलिंग कर रहे हो तो रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग कुछ भी हो, वो टाइम के यस साथ हमेशा डिक्रीज कर रहा है. बिकॉज टाइम के साथ साथ टेम्परेचर डिफरेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है तो हीट ट्रांसफर डिक्रीज कर रहा है, तो टाइम बढ़ेगा. पहले हीट करने में टाइम कम होगा, फिर दोबारा हीट करने में टाइम ज्यादा होगा. ऐसे ही यस सर. पहले कूल करने में टाइम कम होगा, फिर टाइम ज्यादा होगा. बिकॉज रेट ऑफ यस सर. हीटिंग कूलिंग हमेशा डिक्रीज करता है, इसलिए टाइम बढ़ता चला जाएगा. यस सर. यस सर. जो कर्व है वो एसिम्प्टोटिक हो जाती है ना, किसके साथ, एक्स एक्स एक्सिस के टाइम साथ. एक्सिस के साथ. यस वो सर. टाइम है ना, इधर क्या है आपका यस सर. टेम्परेचर, इधर क्या है यस टाइम. सर. तो यस टेम्परेचर यस. में तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, बट टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो यस शुरू सर. में तो यस रेट ऑफ सर. हीटिंग कूलिंग क्या है, बहुत ज्यादा है. तो थोड़े से टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप करेगा, फिर रेट ऑफ कूलिंग क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. जो स्लोप है ना, उस लाइन का जो स्लोप है, उस लाइन के ऊपर अगर आप स्लोप लोगे, दैट स्लोप इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू डिक्रीज. श्योर सर. यस सर. तो रेट ऑफ हीटिंग, चाहे कूलिंग कर्व ले लो चाहे हीटिंग कर्व ले लो, हीटिंग कर्व लोगे तब भी स्लोप क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू डिक्रीज. यस सर. अच्छा, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ये जनरल क्वेश्चन थे ऐसे ही कि जो आपको पसीना समर में आता है कैसे आता है. तो समर में क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज बॉडी का जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको मेंटेन करना है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. अब समर में क्या है, आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, यस सर. तो बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना है 37. तो व्हाट द बॉडी विल डू फर्स्ट, तो आपका हीट ट्रांसफर होता रहेगा बाय रेडिएशन. अब रेडिएशन में हीट ट्रांसफर फर्दर हाउ यू कैन इंक्रीज. सपोज इफ देयर इज सम वाटर इनसाइड योर बॉडी, वाटर है, ऑब्वियसली वाटर है, हमारी बॉडी में कितना पार्ट तो वाटर ही है. तो वाटर यस क्या सर. करेगा, इट विल टेक हीट एंड इट विल वेपोराइज. यस सर. तब लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर. स्वेटिंग क्या कब होती है, जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है ना, तब वो लेयर यहाँ पे दिखने लग जाती है. स्वेटिंग अभी भी होती है, हमें विंटर में भी होती है, स्वेटिंग विंटर में भी होती है, बट बहुत कम यस होती सर. है. बिकॉज टेम्परेचर क्या है, अभी आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, कम है सर. कम है. Are you getting? यस सर. तो विंटर में क्या है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 है, आउटसाइड ज्यादा है, तो हीट अगर आएगा बॉडी में, हीट आएगा तो हमें वो बहुत जल्दी क्या करना है, लूज करना है बाहर. यस सर. तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो आपका वाटर वेपर निकलता रहेगा वेपर की फॉर्म में, बट जब बहुत ज्यादा रेट पे निकलेगा ना, तो फिर लेयर बन जाएगी यहाँ पे. यस. तो पसीना कब दिखता है, जब पसीना जो वाटर है, लिक्विड है, वो वेपर में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कन्वर्ट हो रहा है, इतनी रेट पे कन्वर्ट हो रहा है कि उसका एक्यूमुलेशन हो जा रहा है सरफेस पे. आर यू गेटिंग? यस सर.
एक मैंने और क्वेश्चन पूछा था, उसको भी देखना, आप सर्च करना। इफ यू गो टू द आंसर इट्स फाइन, अदरवाइज मेरे साथ डिस्कस करना, आई विल टेल यू द आंसर फॉर दैट आल्सो। ओके यूरिनेशन वाला जो मैंने पूछा, ठीक है। ओके चलो ओके सर। बाकी ठीक है अमित, मेरे को ओवरऑल ठीक लगा। और थोड़ा सा घबराया मत करो यार, आप घबरा जाते हो थोड़ा सा इंटरव्यू में ना। नहीं सर, यहाँ पे सभी लोग बैठे कॉन्फिडेंट रहते रह हैं के ना, आंसर करना है। यहाँ बैठे रहते हैं ना सभी लोग, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे से आवाज बोलता हूँ। कोई बैठा हो, हाँ। कोई सुन रहा हो, ये डर नहीं सर निकाल दो बैठे बस रहे, आप, अपना नहीं नहीं बेस्ट नहीं दो। नहीं, सर बैठे रहते हैं सर, लैब में बैठता हूँ ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट काम है सर, हम लोग का वर्क जो है, वो हम्म, एक्सपेरिमेंट है, तो इसीलिए। चलो खैर कोई बात नहीं। जब जैसे जब जब एक काम जो करते हो ना, अभी क्या काम कर रहे हैं, अभी जैसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यस सर। अभी मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा साइड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। यस सर। और जब मैं इसको बंद करके दूसरे काम में लग जाऊंगा, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, किसी को क्या सुन रहा है क्या दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बेस्ट दो आप। मतलब ओके उस सर। उस वजह से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए परफॉर्मेंस आपकी। फाइनल इंटरव्यू में तो क्या होगा, 5-6 लोग होंगे, आप कहोगे सर आज तो मैं तो आपसे इंटरेक्ट करके आपसे तो मैं फेमिलियर हो गया हूँ। पैनल तो 7 लोगों का होगा, 6-7 लोग होंगे इसमें। कोई सीनियर लोग भी होंगे, बहुत बड़े टफ एक्सप्रेशन देंगे आपको, अलग से एक्सप्रेशन देंगे, तो आप कहोगे सर 7 लोगों में मैं तो घबरा गया वहां पे। ऐसा नहीं करना, है ना। तो परफॉर्मेंस ओके जो है सर। वो एक्सटर्नल जो फैक्टर है ना, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, उनसे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। मेरे ख्याल से मैं थैंक यू समझा सर। पा रहा हूँ जो कहना चाह रहा हूँ। गुड ओके लक सर। अमित, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू।